بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت اجرت لے کر جو ہے وہ بچے کو لے کر یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ جو ہے اپنے شوہر کے پاس گئیں، کیونکہ وہیں خیمہ لگایا ہوا تھا۔ رات کا وقت ہو گیا کہ بھائی صبح ہوگی وہاں سے ہم جو ہے پھر چلیں گے، تو رات کا وقت تھا تو حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پستان سے لگایا، تو حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ کے پستان میں دودھ بھرایا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹ بھر کر دودھ پیا۔ گویا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات جو ہے پہلے دن سے ہی پہلے وقت سے جو ہے حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہ دیکھنے لگی۔ حضرت حلیمہ بھی بہت شوق ہو گئی، یہ کیا ہوا کہ میرے پستان میں تو دودھ ہی نہیں تھا، میرا بچہ جو کہیں پیٹ بھر کے دودھ ہی نہیں پیا میرے بچے نے، تو انہوں نے دودھ پیا اور فوراً جو ہے پیٹ بھر کر اور خوب سیر ہو کر دودھ پیا۔ پھر اللہ کے رسول کو جو ہے نیچے رکھا تو اپنے بیٹے کو جو ہے اپنے پستان سے لگایا تو انہوں نے جو ہے پیٹ بھر کر دودھ پیا۔ حلیمہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم کئی مہینے سے ہمارا بچہ رات میں سویا ہی نہیں تھا، کیونکہ دودھ نہیں تھا، تو دودھ نہیں دیتا، وہ تھوڑا بہت جو دودھ آتا وہی پی لیتا، اس سے پیٹ نہیں بھرتا، تو پورے رات جو ہے اس کو بھوک کی وجہ سے اسے نیند نہیں آئی۔ کئی مہینے سے جو ہے وہ بچہ کبھی رات کو جو ہے نہیں سویا، نہیں سونے کی وجہ یہی کہ اس کا پیٹ نہیں بھرتا تھا۔ تو حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہ جو ہے بڑی خوش ہوئی کہ ابھی سے برکات جو ہے نمایاں ہونے لگے۔ اس کے بعد جو ان کے شوہر تھے وہ گئے اونٹنے کے پاس، انہوں نے کہا بھائی بہرحال ہو سکتا ہے دودھ نہیں لیکن کچھ نہ کچھ کوشش کریں، تھوڑا بہت تو آئے گا، ہمارا گزارا ہوگا، میرا میری بیوی کا ہوگا، جو ہے ہمارے ماتحت ہے۔ تو حضرت ان کے شوہر جب گئے کٹورا لے کر، چھوٹا کٹورا، کوئی اس میں بھر جائے گا، یہ بھی غنیمت ہے، اس میں تھوڑا بہت جتنا آئے گا اتنا لے لیں گے، لیکن جب گئے تو اونٹنے کے تھن بھی بالکل بھرے ہوئے، تو اونٹنے کے تھن بھی بالکل بھرے ہوئے تھے، تو انہوں نے بھی دودھ نکالا، اس کے بعد اور جو جتنے برتن تھے سب کے سب بھر لیے، اور حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہ کو لا کے دیا، دودھ پیے، یہ کہاں سے ہے؟ اونٹنے نے دیا۔ اچھا اتنا دودھ انہوں نے پیا کہ یہی نہیں کہ اور بھی ہے، جتنے برتن تھے سب کے سب بھر لیے۔ تو حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہ جب بھی سوچنے لگی کہ یہ جو ہے بڑا قیمتی موتی ہمارے ہاتھ لگا ہے، اس کی بہت زیادہ برکات ہے کہ اس بچے کے آتے جو ہے ہمارے اندر بھی دودھ آ گیا اور اونٹنے کے اندر بھی دودھ آ گیا، ہم جو ہے اس کی برکات سے ابھی فیضیاب ہونے لگے۔ تو یہ چیز ایک چیز یہ سمجھنے کی ہے کہ عرب کی عورتیں اپنے بچوں کو کیوں جو ہے دودھ پلانے کے لیے بھیجا کرتی تھی، ایک اشکال بھی سمجھ سکتے ہیں، اور ایک وجہ بھی ہے کہ ایسا کیوں کرتے تھے عرب کے لوگ، عرب کے شرفا لوگ کیوں؟ اس کی دو وجہ ہیں بڑی۔ ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ بچے جو ہے شہر کے مقابلے میں گاؤں میں پلیں گے، وہاں کی آب و ہوا بہت اچھی ہوتی ہے، آج بھی اس چیز سے واقف ہے لوگ باگ، شہر کے اندر پردوشن ہے نا، بہت ساری چیزیں ہیں، تو اسی وجہ سے جو گاؤں ہوتا ہے گاؤں کھلا ہوتا ہے، اب بھی کھلا ہوتا ہے آپ کے مقابلے میں، اور جب تو زیادہ کھلا ہوا کرتا تھا، آب و ہوا، پیڑ پودے نا، اور جو وہاں کی جو ہے ہوا وغیرہ بہت زیادہ صاف اور اچھی ہوا کرتی تھی، دھول مٹی جو ہے زیادہ نہیں ہوا کرتی تھی، تو ایک بچہ کیا اچھی آب و ہوا کے اندر جو ہے پرویش پائے گا، اور گاؤں کے اندر جو چیزیں ہوتی تھی وہ اصلی ہوتی تھی۔ ابھی جو ہے شہر کے مقابلے میں گاؤں کی چیزیں بہت اچھی ہوا کرتی ہیں، شہر کے اندر اصلی دودھ ہی نہیں ملتا، گاؤں کے اندر جو ہے الحمدللہ بہت ساری جگہ جو ہے اصلی دودھ مل جائے، ان کے یہاں اپنی ڈیری ہے، اپنی جو ہے بھینس ہے، وہ تو اصلی دودھ پیتے ہی پیتے ہیں، اس کے علاوہ اور بھی لوگ جو ہوتے ہیں وہ بھی گاؤں کے اندر اصلی دودھ پی لیتے ہیں، لیکن شہر کے اندر گویا کہ کوئی پی ہی نہیں سکتا اصلی دودھ۔ ان وجہ سے جو ہے اپنے بچوں کو گاؤں کے اندر بھیجا جاتا تھا، ایک وجہ۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ زبان صاف ہوتی تھی، شہر کے اندر مثال کے طور پر ہمارا یہ فرید آباد شہر ہے، تو یہاں کوئی دلی سے آیا ہے، کوئی یو پی سے آیا ہے، کوئی بہار سے، کوئی بنگال سے، کوئی آسام سے، کوئی کہیں سے، تو سب کی جو ہے زبان، سب کی لینگویج مکس ہو گئی، اور کوئی بچہ پیدا ہوگا تو سب کی باتیں سنے گا، تو اب اس کی اپنی ایک لینگویج نہیں ہوگی، وہ سب طرح کی باتیں بولے گا، جو جہاں کی کچھ میوات کے ساتھی کی بات سنا تو میوات والی لینگویج بولے گا، دلی والوں کو سنا دلی والوں کی، لکھنؤ والوں کی لکھنؤ والوں کی، تو لینگویج مکس ہو جاتی ہے شہر کے اندر، لیکن گاؤں کے اندر لینگویج مکس نہیں ہوتی، وہاں ان کی اپنی ہی زبان ہوتی ہے، حالانکہ ہمارے یہاں بہت سارے گاؤں کے اندر زبان اچھی نہیں بولی جاتی، اس لیے ہمیں اچھی نہیں جو محسوس نہیں ہوتا گاؤں کی زبان، لیکن جہاں اچھی بولی جاتی ہے تو وہاں خالصی زبان جو ہے اسی جگہ کی ہوتی ہے، اور کسی کی زبان مکس نہیں ہوتی۔ جب بچہ وہاں پلے گا 2 سال 4 سال، کیونکہ جب بچہ سیکھتا ہے نا، بچہ بڑا ہوتا ہے، جو پہلی بات سنتا ہے وہ ایک دم دماغ کے اندر اور دل کے اندر جو نقش ہو جاتی ہے، بات ایک دم بہت زیادہ جو ہے بچہ سیکھ لیتا ہے۔ تو اس میں بچے نے پہلی بات سنا کہ باپ، تو اپنے باپ کو باپ ہی کہے گا، ایک نے سنا والد تو اپنے باپ کو والد کہے گا، پھر وہ کیونکہ میرے والد صاحب آئے،
तो ये चीज जो है अपनी होती है। तो जबान साफ होगी, जबान जो है एक होगी, इसलिए जो है अपने बच्चों को गांवों के अंदर अरब के लोग और खासतौर मक्का के लोग जो है शुराफा मक्का होते थे, अपने बच्चों को इसलिए दूध पिलाने के लिए भेजा करते थे। आबो हवा बिल्कुल साफ मिले, दूसरी जबान बिल्कुल साफ हो, मिक्स ना हो। मिक्स होने की वजह से जो है लैंग्वेज मुश्किल हो जाती है। इन दो वजह से जो है ये क्या करते थे। यहाँ तक हमने बात बतलाई कि है हलीमा रजी अल्लाह अन्हा, जो हमने लिख रखे ना 4-5 चीजें लिख रखी है कि हलीमा रजी अल्लाह अन्हा शुरू में क्या बरकत देखी। ये तो पिस्तान के अंदर दूध आ गया एकदम हज़रत हलीमा रजी अल्लाह अन्हा के, जो हमने पहली बार बतलाई। दूसरा, ऊँटनी के थन में भी दूध आ गया, जो बात बतला चुके। तीसरा, खच्चर ऊँटनी जो थी वो बड़ी तेज चलने लगे, क्योंकि बाद में पहुंची, दो मिसाल के तौर पर 3 दिन का सफर था तो 4-5 दिन में पहुंची। इतने वो औरतें बच्चे लेकर निकल चुकी थी। हलीमा रजी अल्लाह अन्हा जब आई, और जब ये आई तो आने के बाद फिर रात हो गई, अपने वहीं रुके, तो ये बरकत देखी। जब सुबह हुई तो हज़रत हलीमा रजी अल्लाह अन्हा से निकली, तो निकलने के बाद खच्चर ऊँटनी इतनी तेज जो है हज़रत हलीमा रजी अल्लाह अन्हा के चल रहे थे। जो औरतें साथ आई थी, जो 1 दिन पहले या 2 दिन पहले हज़रत हलीमा रजी अल्लाह अन्हा से निकल चुकी थी, वो पीछे छोड़ गई, वो उनको ओवरटेक कर दिया इन्होंने। तो जो औरतें, देखो कौन जा रही है, वे तो हलीमा लग रही है। उन्होंने कहा हलीमा रुक जाओ हमारे लिए, क्या नहीं आप भी हमारे लिए रुके, हम आपके लिए क्यों रुके। तो कहेगा इतनी स्पीड से जो है वो खच्चर और ऊँट था वो इतनी तेज चला कि सब हैरान हो गए। तो वही जो खच्चर वही ऊँटनी आते हुए जो है हर बार पीछे रह जाता था, उसकी वजह से उन औरतों को रुकना पड़ता था ना। तो अभी ये खच्चर जो 2 दिन बाद चला है और जो ऊँटनी जो 2 दिन बाद चली है वो उनसे आगे निकल गए, बड़ा ताज्जुब हुआ बहरहाल। तो ये बरकत भी जो है हज़रत हलीमा रज़ी अल्लाह अन्हा ने अल्लाह के रसूल की देखी। उसके बाद जब अपने कबीले के अंदर, अपने इलाके के अंदर हज़रत हलीमा रज़ी अल्लाह अन्हा पहुंच गई, तो हज़रत हलीमा रज़ी अल्लाह अन्हा की बकरी ऊँट जो होते थे जहाँ वो चरते थे, क्योंकि वहाँ बारिश तो थी नहीं, ढेर पड़ा हुआ था, कहीं घास तिनका वगैरह थे नहीं, लेकिन जहाँ भी हलीमा रज़ी अल्लाह अन्हा के बकरी वगैरह जानवर वगैरह चरते, वहाँ अल्लाह तबारक व तआला जैवी तौर पर घास उगा देते। वो बिल्कुल चर के आते तो दूध भी अच्छा देते। तो इससे जो है पूरे गांव के अंदर, इलाके के अंदर ये हो गया हज़रत हलीमा के जानवर भी बहुत अच्छा चाहते हैं, उनका दूध भी बहुत अच्छा आता है। तो जो दूसरे लोग थे जिन अपने चरवाहे को कान पकड़ के कहते वहां चराया करो अपने जानवर जहाँ हलीमा के जानवर चरते हैं। तो पता नहीं कहाँ चरा के आते हो, तो तुम्हारे जानवर को कुछ भी नहीं मिलता, हलीमा के जानवर जो है खूब अच्छे चर के आते हैं, वहां जाके चरा के आया करो। तो उन चरवाहों ने कहा हम भी वहीं जाते हैं, लेकिन जब हलीमा के जानवर चरते हैं तो घास आ जाती है, हमारे जानवर चरते हैं तो वहां घास आती नहीं है। तो ये जो है ये बरकत भी हज़रत हलीमा रज़ी अल्लाह अन्हा ने देखी। इसी तरह हज़रत हलीमा रज़ी अल्लाह अन्हा कहती जब अपने घर के अंदर जाती अल्लाह के रसूल को लेकर, तो ऐसा लगता है घर जो पूरा नूर से भरा हुआ है और मुझे बहुत जो है कल्बी सुकून मिलता है। तो इसके अलावा और भी जो है बरकत हज़रत हलीमा रज़ी अल्लाह अन्हा ने देखी। देखते देखते इसी तरह जो है तकरीबन 2 साल गुजर गए। तो 2 साल गुजर गए, अल्लाह का रसूल जो है तकरीबन 2 साल के हो गए, क्योंकि 2 साल की अब जो है एग्रीमेंट था। इसी तरह होता था एग्रीमेंट जो है आ गई औरतें कि 2 साल तक तुम्हें दूध पिलाना है, उजरत है, इतनी चीजें आप चली जाए। तो 2 साल पूरे होने वाले थे। हलीमा रज़ी अल्लाह अन्हा अपने शौहर से मशवरा करने लगी, भाई अल्लाह यानी ये जो बच्चा है हमारे पास, इस बच्चे की बरकत ही इतनी है कि अगर इसकी माँ, इसके दादा, इसके चाचा हमें कुछ ना भी दें, जब भी हमारा दिल चाहे कि हम इसको कई साल जो है 2-4 साल अपने पास और रखें, क्योंकि हमें तो इसके बदले और अल्लाह की तरफ से अजीब चीजें मिल गई ना, गैबी तौर पर मिल गया। वो है कि अल्लाह की तरफ से डायरेक्ट हमें इसकी उजरत मिल गई। तो इसलिए हम चाहते हैं कि हम जो इस बच्चे को और ज्यादा अपने पास रखें, लेकिन क्योंकि एग्रीमेंट 2 साल का है, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, वहां जाना पड़ेगा। तो 2 साल पूरे हो गए तो हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह अन्हा अल्लाह के रसूल को लेकर हज़रत आमिना के पास गई और जाकर जो है दरखास्त करने लगी। वो है कि तमहीद बांध ली कि आपका बच्चा माशाल्लाह बहुत अच्छा जो है हम जो है इसकी बहुत अच्छी केयर कर रहे हैं, आपका बच्चा जो बहुत अच्छा तंदुरुस्त है, इस तरह की बातें जो है करने लगी। वहाँ की आबो हवा बहुत अच्छी है, यहाँ जो है दूध भी बहुत अच्छा है, और जो है इस बच्चे को थोड़े दिन और चाहिए कि हमारे पास रहे ताकि और अच्छा हो जाए। और अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से अल्लाह के रसूल की ग्रोथ जो थी वो और बच्चों के मुकाबले थोड़ी अच्छी थी। वो है कि साल 2 साल जो है बड़े ही अल्लाह के रसूल और बच्चों के मुकाबले में लगा करते थे। तो इस तरह जो है हज़रत हलीमा रज़ी अल्लाह अन्हा हज़रत आमिना के पास जाकर तमहीद बांधने लगी और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने पास रखने की दरखास्त करने लगी और इसरार करने लगी, क्योंकि मक्का के अंदर उस वक्त कुछ बीमारी फैली हुई थी।
اس لیے حضرت आमिना रज़ी अल्लाह अन्हा ने उनकी दरख्वास्त को कबूल भी कर लिया और कहा ठीक है भाई, आप अब जो है हमारे बच्चे को कुछ साल और कुछ दिन और अपने पास रखें, जब वो अच्छा हो जाएगा हम बुला लेंगे, आप ले आना। तो एग्रीमेंट होगा जो है हज़रत हलीमा रज़ी अल्लाह अन्हा फिर दोबारा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने साथ ले गई। ले जाने के बाद ये होगा अल्लाह के रसूल जो है उनके पास रहते रहे, पलते रहे। और इसी तरह जो उनके भाई यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रज़ाई भाई थे, जो है आमिना रज़ी अल्लाह अन्हा के बेटे थे, उनके साथ जब थोड़े से बड़े हुए 3 साल 4 साल के, तो उनके साथ जो है वो बकरियां चराते थे, उनके साथ जो है ये जाने लगे। जब जाने लगे तो जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 4 साल के हुए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब 4 साल के हुए तो उस वक्त एक अजीब व गरीब वाक़या पेश आया। वाक़या पेश आया कि अल्लाह के रसूल जो है अपने रज़ाई भाई जो है दूध शरीक भाई उनके साथ गए हुए थे बकरी चराने। तो देखते हैं उनके रज़ाई भाई के 2 आदमी आए। 2 आदमी आने के बाद जो है एक थाली लेकर आए सोने की, उसके अंदर जो है बर्फ है और पानी है, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है लिटाया, उनका सीना जो है चाक किया, उनका सीना जो है छुरी से काट दिया, और उनका जो है दिल निकाला, दिल को साफ किया, धोया, उसे जो है अलग से 2-4 बूंद खून की लगी हुई थी, काले खून की, तो उसको हटाया और धोकर उसके अंदर जो है फिर इसी तरह रख दिया। तो घबरा गए, भागे भागे अम्मी के पास आके अम्मी अम्मी भाई को जो है कुछ लोग आए और इस तरह कर रहे हैं। तो हज़रत हलीमा रज़ी अल्लाह अन्हा भी बहुत ज्यादा जो है घबराई। घबराने के बाद जो है हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह अन्हा जो है भागे भागे आई, देखा बिल्कुल अल्लाह के रसूल उस वक्त सही हो चुके थे। पूछा बेटा भाई क्या बात क्या हुआ? जब देखा तो सीने पर जो है सुइयों के निशान थे, गोया कि ऑपरेशन की इजाद थी। गोया कि जो है हर 2 फरिश्ते जो थे वो हर जिब्राइल और हर मीकाइल अलैहिस्सलाम थे, वो इंसानी शक्ल के अंदर आए सफेद लिबास के अंदर, और उन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है सीने को चाक किया और जो है दिल को निकाला, दिल को निकालकर उसको साफ करके बर्फ से और पानी से धोकर जो है फिर दोबारा इसी तरह ऑपरेशन करके दिल को पैक कर दिया जैसे होता है। क्योंकि हमने बतलाया कि हर चीज को है कि इस्लाम ने सिखलाई है। सूरह फिल के वाक़े के अंदर आया था तो गोली को इस्लाम ने किस तरह इजाद किया, गोली का काम करा ना उसने बिल्कुल, तो गोली की इजाजत भी गोया वहीं से हुई। ऑपरेशन की इजाजत जो है इजाद यहाँ से हो रही है। गोया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो दिल को धोया, हालांकि यहाँ मकसद और कुछ है, लेकिन क्या है ये भी गोया एक तरह का ऑपरेशन है, जिसको गोया के बाद में डॉक्टरों ने देखकर कहा हुआ इस तरह का ऑपरेशन हो सकता है, इस तरह ऑपरेशन बाद में इजाद हुआ। तो इस तरह आकर जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने को गंदगी से और गुनाह से और शैतान के जो धब्बे थे 2-4 उसको हटाकर अल्लाह तबारक व तआला ने जो है इसी तरह उनको पैक करा दिया। तो इस वाक़े से हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह अन्हा जो है डर गई। तो ना मालूम सरदार का बेटा है, या अजीब अजीब वाक़या होते रहते हैं। पहले दिन से ही जो है इस तरह के बरक़ात और अजीब जो है चीज़ें हज़रत हलीमा रज़ी अल्लाह अन्हा देख रही हैं, लेकिन जब ये वाक़या हुआ तो डर गई। ना मालूम अगर कुछ हो गया तो हमारे ज़िम्मे जो है देने पड़ जाएंगे, हम लालच के अंदर आ गए। तो इस वजह से जो है हज़रत हलीमा रज़ी अल्लाह अन्हा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर 4 साल की उम्र में जो है हज़रत आमिना के पास वापस दी आई। हज़रत आमिना के पास गई और बतलाया इस तरह वाक़या हुआ। आमिना कहा डरने की कोई बात नहीं, मैं पहले दिन से ही जो है अल्लाह के रसूल को इसी तरह महसूस कर रही हूँ कि जो मेरा बेटा है ये बड़े आला मर्तबे का है, कोई अल्लाह ही की तरफ से जो है गोया के अजीब करिश्मा है जो इस तरह इनके साथ हो रहे हैं, और अल्लाह ताला को इनसे कोई बड़ा काम लेना है, इसलिए मेरे लिए कोई ताज्जुब की बात नहीं है। लेकिन क्योंकि हज़रत हलीमा रज़ी अल्लाह अन्हा जो है वो कुछ डर भी गई, तो इसलिए वो वापस कर आई। तो इस तरह जो है हज़रत हलीमा रज़ी अल्लाह अन्हा का भी दिल रह गया, तो कुछ दिन और उन्होंने रख लिया, और क्योंकि इस तरह के वाक़या थे तो इसलिए वो देने पर राजी भी हो गई, और हज़रत आमिना के पास भी पहुंचा दी, माँ के पास भी जो है कुछ दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहना था। इस तरह अपने माँ के पास आ गए।